Okay. Slideshow from the concept. Okay, so this is nothing but topic. पहले रेशियो के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस एंड देन प्रोपोर्शन के बारे में कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड देन टेस्ट. ओके. सो रेशियो वर्ड सुन के कैसे पहली चीज याद है कि a डिवाइड बाय b होता है या फिर a to b जो हम लोग लेते हैं दैट इज नथिंग बट अवर रेशियो. मुझे याद दिलाते रहना कि मुझे यहाँ पर खड़ा रहना. So the ratio a to b is written as a by b. We know how to write those things. But the most important thing is, suppose if I have 1:2. Suppose if I have 1:2. This thing is actually same as 2:4. Yes or no? Yes. Similarly, suppose if I have 15:10, and that could be written as 3:2. So what thing we are observing is, अगर कहीं पे हमें रेशियो पे काम करना है तो रेशियो stay unchanged when we multiplied by some constant or we divided by some constant. Right? So हमने क्या किया था यहाँ पे इस केस के अंदर we just multiplied by 2 and in this case we divided by 5. So क्या होगा ना, सिचुएशन के अंदर हमें रेशियो को उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना होगा. So these two things are allowed. You can multiply, you can divide. You cannot add and subtract and tell me the ratio is same. For an example, if I tell you my 1:2 is same as 1 plus 1 is to 2 plus 1. मैंने दोनों जगह पे 1 ही ऐड किया ना, तो सेम क्यों नहीं है? रेशियो के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन में इक्वालिटी नहीं मिलेगा, राइट? बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इट विल गिव अस इक्वालिटी. The rule is multiplication or the division of each term of a ratio by same non-zero number does not affect the ratio. Multiply करोगे, divide करोगे, you can write the equal sign to the ratio. ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. आगे चलते हैं. इस वर्ड का मतलब क्या था? प्रोपोर्शनल. 4 numbers are proportion, are in proportion. Parts in which sense? We divide something in parts, so how do we say it is proportional? Equal. What equal? If the two ratios are equal, that thing is called as a proportion. For an example, can I say my 1/2 is same as 5/10? Correct. So I say that this number are in proportion. 1, 2, 5, 10 are in proportion. We can write this as 1:2 is in proportion with 5:10. तो जब कभी भी रेशियो इक्वल हो जाते हैं वो बन जाता है हमारे लिए प्रोपोर्शन. The equality of two ratio is called proportion. We can write it like this. Whenever we have proportion, यानी कि अगर मेरे पास 4 नंबर है, the first and the last number are called extremes, whereas the middle numbers are called mean terms. ठीक है, this terminology are also used because proportion अगर आप lower level competitive exam के लिए जाते हो, not directly to CAT, but MHCET के अंदर भी ऐसे word use हो जाता है. If the extreme proportion are this, what you can conclude about the mean proportion? यानी कि पीछे के 2 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, बीच के 2 नंबर के बारे में आपको सोचना. So if I have A, B, C, D are in a proportion, then I have A by B is same as C by D. What we can do after this? क्या याद आता है अगर ऐसा दो चीज रेशियो? We can cross multiply. That means A into D is same as B into C. What is this A into D actually? A और D क्या है? Extremes. So what we are observing, if 4 numbers are in proportion, the product of the extreme is same as product of extremes. So that is nothing but the observation. Is it fine? Going well till now? Okay. So now we actually know what are these two terms. But now let's come to the some kind of a question that could be asked. बहुत basic सा question है कि ना आपको 3 नंबर दे दिए हैं और आपको 4th नंबर को फाइंड आउट करना है such that those 4 number are in proportion. For an example, हमारे पास जो एग्जाम्पल था 1, 2, 5, 10. This number are in proportion. उन्होंने 3 नंबर दिए होंगे, चौथा आपको फाइंड आउट करना. How we can find out this? X is unknown, which I want to find out. What we know this? अगर A, B, C, D are in proportion, that means A by B is same as C by X. Cross multiply करेंगे तो can I write X is same as B into C by A? Correct? By using this, can you answer this question? Yes, 4 by 10 is same as 12 by x. x ढूंढूंगा कैसे मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
So x is same as what? Yes, it is 30. It is just divided by 4 and it is same as 30. Is it fine? Basics are question सिर्फ fourth proportion करना स्कूल लेवल से भी नीचे का काम है, बट ये वर्ड पता चलना चाहिए. If they are telling me what is the fourth proportion, that means वो उनका रेशियो सेम होने वाला है. A by C सेम है C by D. आपको उस D को फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ पे 4 नंबर थे तो मैंने बोल दिया हाँ A by B सेम है C by D. But suppose if I have only 3 numbers and I tell you they are in proportion, what will happen? 4 नंबर होते तो 2 रेशियो मिलता है, 3 नंबर है तो 2 रेशियो कैसे निकालेंगे? If I have only 3 numbers, how I can reach till ratio? मेरे पास 2 रेशियो हो गए, उसको इक्वल बनाऊंगा तब जाके प्रोपोर्शनल बनता है. 3 रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे? बीच वाले नंबर को रिपीट कर देंगे, राइट? So if I have 3 numbers in proportion, for an example, अगर मैं कहता हूं I have A, B, C, this 3 number are in proportion, that means I'll tell A by B is same as B by C. And if I cross multiply, what I get? B square is equal to AC. सब लोगों ने स्कूल में जीपी नाम सुना था? अरे जीपी, जीपी क्या होता था? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वहां पे क्या होता था? ऐसा ही कुछ होता था, है ना? प्रोग्रेशन कब बनता है? जब कभी भी रेशियो सेम होता है. दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को जीपी. The numbers, the sequence is said to be in GP if the ratio of two successive terms is same. Geometrical mean, arithmetic mean क्या होता है? If I ask you, I have 5 and 3, arithmetic mean निकालो, आंसर क्या आएगा? Add them, divide by 3. Arithmetic mean is nothing but your average. Geometrical mean is nothing but this way you can find out. अगर सपोज क्वेश्चन में कहीं पूछा जाता है, you have two numbers, you have to find out geometrical mean. Geometrical mean is nothing but this middle number B. ठीक है. तो ये जो B है अगर आपको फाइंड आउट करना है, सपोज इफ द क्वेश्चन इज I have 5 and 3, what is its geometrical mean? 5 and 3, what is its geometrical mean? तो क्वेश्चन मार्क बीच का नंबर. So this B square is actually nothing but 5 into 3. So your answer is nothing but root of 50 is nothing but your geometrical. बट हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लोग तो प्रपोर्शन के ऊपर काम कर रहे हैं. यानी कि अगर मेरे पास 3 नंबर प्रपोर्शन के अंदर, यानी कि बीच वाले नंबर को डबल टाइम्स लिखना है, A B B C, that means B square becomes AC. Okay sir, what is the reason by the way? Okay sir, okay. So A B C are in a proportion if I have A and B ratio is same as B to C. Just let me know the answer for this. You have to find out the third term. Third term यानी कि आपको C को निकालना, ठीक है? Is it 46? 36. Ah, yes, 36, correct. Okay, so it is 4 by 12 is same as 12 by what? It must be 36. Because 4 से 12 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए था. Correct? Yes sir, please. Precious नहीं है sir? तो attendance sheet. Very good. Thank you sir. Okay. चलिए आगे. क्या क्या पढ़ा है? Proportion. सर आपको भी जाना है? जाओ सर. Precious. सबको आप ही कर लो इनवाइट. जल्दी जल्दी आप सर, थोड़ा जल्दी, ठीक है? सिर्फ तो 4 नंबर आर इन प्रोपोर्शन, दैट मींस A by B सेम एज C by D. 3 नंबर्स यानी कि A by B सेम एज B by C. एक नंबर रिपीट होगा बीच का नंबर. ओके, नाउ हियर कम्स अ बेसिक टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ऑन रेशियो दैट कुड बी आस्क्ड. क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन दिस रेशियो A is to B एंड यू नीड टू नो अबाउट कि वो पार्ट्स क्या है ना? तो जब कभी भी हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज इफ आई हैव अमाउंट ऑफ x व्हिच आई डिस्ट्रीब्यूट टू टू पीपल इन द रेशियो A is to B. अब पहले वाले को कितना मिला होगा और दूसरे वाले को कितना मिला होगा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं. So whenever I am dividing something in the ratio A is to B, for an example, suppose if I have 1000 rupees
I divided into the ratio 2:3. So what I am doing? First part, पहला चीज मैं क्या करता हूँ? If I want to divide into the 2:3, पहला चीज मैं क्या करूंगा? मेरे अमाउंट को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? 5 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट उसको दूंगा, 3 पार्ट इसको दूंगा. This is the way we work, है ना? अगर ये कॉन्सेप्ट है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. जैसे कि मेरे पास एग्जांपल के अंदर क्या था, my sum is x, I distribute into ratio of a to b. That means total number of part is what? A plus b. Now from this a plus b, how much the first person get? A. That means पहले बंदे को कितना मिला होगा? टोटल x का जब मैंने a plus b पार्ट बनाया, उसमें से a पार्ट उसको मिला रहेगा. करेक्ट. सिमिलरली दूसरे बंदे को क्या मिलेगा? x का जब मैंने a plus b पार्ट बनाया, उसका b पार्ट उसको मिला रहेगा. राइट. सो वी कैन डायरेक्टली रीच टू द आंसर के पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला. ठीक है, चलेंगे इसको सॉल्व करके देंगे. डोंट राइट ऑन पेपर, मेंटली. चलो, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है तो अभी नहीं, जब डिफिकल्टी होगा तब लिखो. अभी मेंटली थोड़ा ट्राई करेंगे. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट अमाउंट आई विल डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स. पहले बंदे को कितना मिला रहेगा? 2. That means 2 by 9 into 1200 is the first answer, and second is nothing but 7 by 9 into 1200. Is it fine? Yes. Okay. The similar concept, we are increasing that number. अब मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बट अगेन टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना होगा? a plus b plus c. उसमें से a को कितना मिला? सो a पार्ट मिला, फर्स्ट को a पार्ट मिला. सो इट इज ax डिवाइड बाय a plus b plus c. मैम कुछ क्वेश्चन है? पक्का ना? क्वेश्चन मार्क था. इज इट फाइन? पक्का. इसको सॉल्व करके देंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को. ट्राई टू सॉल्व दिस. यस, नो वन विल आंसर. मैम आंसर करेंगे. आई एम आस्किंग टू द लास्ट बेंच. आई होप यू आर नॉट मिसकंसेप्ट. आपको उनको पूछा. So this amount is divided into how many equal parts? 10 parts. उसमें से पहले बंदे को कितना मिलेगा? 5 टाइम्स ऑफ दिस. 5 by 10 of 2200. पहले तो 0 0 कैंसिल. 22 into 5 0 0 1 1. Correct. This is first part. Second is nothing but 3 times 220, and last is nothing but 2 times 220. Correct. 660 and 440. Is it fine? रेशियो में डिवाइड करें तो किस तरीके से डायरेक्टली आंसर पर पहुंचना. ओके. नाउ सपोज सिचुएशन में कुछ अलग तरीके से कंपैरिजन है. 3 ही रेशियो है, यानी कि ए बी सी है, लेकिन उन्होंने ए और बी के बारे में बात की, फिर अलग से बी और सी के बारे में बात की. यानी कि उन्होंने बताया कि ए और बी को जो पार्ट मिल रहा है इट इज 3:5. बी और सी को जो पार्ट मिल रहा है इट इज 9:10. बट यू नीड टू थिंक ऑफ कंबाइन ऑफ 3 ऑफ देम. कैसे सोचें? How we can answer this question? Yes, B should be equal at the both the parts. Then we can combine them, right? If we want to combine two ratio, something that we need to notice कि जहां पर overlapping हो रहा है वहां पे same number लाना है. Correct? So I know that my A is to B is in the ratio 3:5, where B is to C is in the ratio 9:10. Now overlapping कहां पर है? Overlapping B के ऊपर है, तो I just want this two numbers to be equal, है ना? रेशियो में what I can do, I can either multiply or I can divide. यहां पे मुझे क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई. फर्स्ट रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 9 से. तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 27:45, and this is nothing but 45:50. That means my A is to B is to C is same as what? 27, 45 and 50. Correct? So this is the way we can combine. अब देखो ये तो हो गया, हमने सोच लिया कि ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए इस तरीके से करना है, बट लॉजिकली स्पीकिंग क्या हो रहा है? Whenever I say A is to B is 3:5, what does it mean? जब कभी भी A को 3 पार्ट मिलेगा, B को कितना मिलेगा? 5 पार्ट मिलेगा, है ना? सिमिलरली जब कभी भी B को 9 पार्ट मिलेगा, उस टाइम पे C को 10 पार्ट मिलने वाला है. So what we were trying to do, we were trying to see कि B को equal amount of part दोनों जगह पे कब मिल रहा है ना? So उसीलिए हम लोग ने कॉमन नंबर के बारे में बात की. And hence
वो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. इज इट फाइन? हाउ वी कंबाइन इट? जब कभी भी ओवरलैपिंग है वहां पे सेम नंबर लाना है. सेम नंबर लाने के लिए वही नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है. यू कैन थिंक ऑफ एलसीएम एज वेल. करेक्ट. इन दिस केस 45 था इसलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं. ठीक है. बट इन जनरल व्हाट वी कैन डू, suppose if I have a is to b is n1 into d1, b is to c is nothing but n2 into d2, the most easiest way is what? उन्होंने क्या कर दिया दोनों जगह पे? What they have done? उन्होंने पहले वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई किया? पहले वाले रेशियो a is to b को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? है ना. ओ हियर a is to b was this, यहाँ पे a is to b ये हो गया. किससे मल्टीप्लाई किया? n2. यानी कि पहले रेशियो को n2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई किया था? d1 से. करेक्ट. सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे जो हम लोग ने यहां पर भी किया. ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. बट यू कैन थिंक ऑफ एलसीएम एज वेल. एट एनी पॉइंट इफ यू फील आई एम गोइंग फास्ट, प्लीज लेट मी नो. बस चीजें इजी है, सो आई थॉट वी कैन वर्क थोड़ा फास्टर. ट्राई टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज. थोड़ा सोच के. यस, यानी कि आपको इन दोनों को सेम करना है, फिर वो हो जाने के बाद इन दोनों को भी सेम करना है. करेक्ट. तीनों के एलसीएम के बारे में सोचो, थोड़ा हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करो. तीनों का एलसीएम सोचना गलत हो जाएगा, है ना. पहले तो आप सिर्फ ए इसको कंबाइन करके देख लो क्या है. वंस यू गेट दैट, तब आपको आइडिया मिलेगा कि सी का एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है, जिसको आपको मैच करना है इसके साथ. करेक्ट. But I know this is 2:3. I know this is 4:5. क्या कॉमन कर सकता हूं मैं इसको? It is nothing but 12. So अगर मैं यहां पर इसकी जगह पे 12 लिखता हूं, that means what I am multiplying it with? I am multiplying with 4. So इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 8. ये 4 है, उसको 12 करना है मुझे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया, so इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 15. So that I found that a is to b is to c is nothing but 8, 12, 15. अब मुझे इसको किसके साथ कंबाइन करना है? c is to d. अब c is to d के अंदर ये 6 है और ये 7 है. मुझे ओवरलैपिंग करने के लिए 15 है वहां पर, यहां पर 6 है. 15, 6. एलसीएम क्या होगा? 30 आता है ना दोनों के टेबल में. मुझे 30 बनाना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई और यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई. इफ आई मल्टीप्लाई द अबव बाय 2, I get a is to b is to c is to d same as what? 16, 24, 30 and 35. Is it fine? Correct? जहां पे ओवरलैपिंग है, बट स्टेप बाय स्टेप जाना. ठीक है. इफ यू थिंक ऑफ एलसीएम ना, आप एक जगह पे ओवरलैप करोगे तब एलसीएम सोचो, बिकॉज वंस यू कन्वर्ट 2 रेशियो टू सिंगल, ये c का वैल्यू बदल जाएगा. जैसे कि इनिशियली 5 था, अब 15 है. चल सकते हैं आगे? इज इट फाइन? ओके. थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन इन रेशियो. रेशियो दिया है, फिर बोलते कि कोई एक नंबर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो नया कुछ रेशियो बन जाता है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा कि ओरिजिनली क्या नंबर हो गए रेशियो के अंदर. क्या सोचते हो क्वेश्चन के बारे में? सबसे पहले कुछ तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए. सो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज 3x और सेकेंड नंबर इज 4x. इसको मैंने क्या कर दिया? वी हैव एडेड इट बाय
8, the new ratio becomes 5/6. Yes please, थोड़ा जल्दी आ जाओ. What we are supposed to do, we have to cross multiply. Ultimately find out क्या करना है? We need to find out, ultimately answer is find the numbers. What are the numbers? 3x and 4x or something which we want to find. X निकालेंगे फिर 3x and 4x as the answer, right? Just cross multiply this. What is the value of x? What are these? Bunch of this answer is 4, right? So that definitely मुझे multiplication आता है, but why I'm writing like this? Because while writing like this we can identify the pattern. You can see, suppose अगर question in general कुछ भी होता, मतलब कि उन लोग मुझे बोलता है कि initial it is a by b, I add x to numerator and denominator, it becomes c by d. I need to find out this x, है ना, या फिर x, या फिर मुझे ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, कुछ भी मुझे पूछा जा सकता है. बट गिवन इज इनिशियल रेशियो इज a by b, इफ आई ऐड x इट बिकम्स c by d. अगर उस हिसाब से देखोगे तो मेरे क्वेश्चन के अंदर a by b क्या है? इन द गिवन क्वेश्चन इट इज, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, x का वैल्यू इज 8 एंड देन ओवर हियर इट इज actually I'm using x over there ना, so मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ. Suppose it is y, I add y to numerator and denominator, this is nothing but 5/6. So now if I observe the value of x is same as what in terms of a b c d, if you let me know. यहाँ से देखो, it is y bracket d minus c, करेक्ट. यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इसको, y ब्रैकेट d माइनस सी डिवाइडेड बाय, यस सर हो गया डांस. इट इज cb, श्योर, it is cb minus ad, correct. That thing, can I write this is same as y c minus d divided by ad minus bc? चलेगा क्या? मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. व्हाट वी आर फाइंडिंग अल्टीमेटली इज, ये जो x है वो किस तरीके से काम करेगा आपके लिए. Once you know this x, what is your answer? Your answer is ax and bx. ax and bx were the original numbers from which you started. So अगर सपोज आपको दिया जाता है a to b है, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y ऐड किया जाता है, बन जाता है c to d, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना है. The numbers are nothing but ax and bx, where x is given by this formula. ठीक है. इज इट फाइन? एक बार रीड करेंगे, थोड़ा टाइम बाउंसर लगेगा, फिर कवर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में चलो मेरे, एंड थिंग्स आर रिकॉर्डेड तो टेंशन बाद में देखते हैं. करेक्ट, बट व्हाट इज आस्क्ड, नहीं पूछा क्या क्वेश्चन में. इन द क्वेश्चन फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, करेक्ट. अगर सपोज पूछा होता कि नए नंबर को फाइंड आउट करो, देन आई शुड हैव थॉट समथिंग एल्स, यानी कि यहाँ पर फिर सोचता, फिर बोलता कि -8 करना पड़ रहा है मुझे, करेक्ट, बिकॉज वहां पे ऐड करा तो यहाँ पे -8 करना. इज इट फाइन? चल सकते हैं आगे. लेट्स सी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. डाउट क्लियर है पक्का?
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ में चलो हमारे, ठीक है। सो अगर सपोज उल्टा क्वेश्चन है कि वहां पे क्या बोला था कि ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, यहाँ पे बोल दिया रेशियो a बाई बी से c बाई डी हो गया, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर ऐड किया होगा ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। क्या सोचते हो? आंसर दे दिया स्क्रीन के ऊपर, आंसर इज ऑलरेडी देयर, है ना। अगर सपोज आपको बोला जाता है ओरिजिनल रेशियो इज a बाई बी, आप उसमें क्या ऐड करोगे तो हो जाएगा c बाई डी, द आंसर इज नथिंग बट ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c माइनस डी। बट ये आंसर किस तरीके से आता है वापस से सोच सकते। अगर सपोज मेरे पास नंबर है, हाउ टू गो अप, यस, इफ द नंबर इज a is to b, that means what, the numbers are a r and b r. Suppose if I add x into it, it becomes c by d. What I am interested to find in this case, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या ऐड करूंगा तो ये चीज होगी, करेक्ट। सबको समझा ए आर बी आर क्यों लिया, बिकॉज ओरिजिनल नंबर्स आर नॉट ए एंड बी, दे आर सम मल्टीपल ऑफ इट, करेक्ट। इसीलिए हम लोग ने ए आर एंड बी आर लिया, उसके अंदर एक्स एक्स ऐड किया, आंसर आ रहा है सी बाई डी। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करूं इसके आगे, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर श्योर, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, आई गेट इट इज ए डी आर प्लस एक्स डी इज इक्वल टू बी सी आर प्लस एक्स सी। नेक्स्ट मुझे x को इंटरेस्ट है तो x को एक साइड रखूंगा, सो इट बिकम्स x टाइम्स c माइनस d, वो हियर इट इज ad माइनस bc टाइम्स r. So the finally what I get is x is same as what, ad minus bc divided by c minus d times r. What is this r? R was that number which we multiply. अब वो कुछ भी होता हमें चलता. So what I found, what you can add any multiple of it, you can get to the required answer. Required answer यानी कि a by b के अंदर अगर आप इस x को ऐड करोगे आपका आंसर पक्का c by d आने वाला है। एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस ओरली। Find the number that should be added to this number such that the ratio becomes 11 by 20. Your answer is nothing but AD minus BC divided by C minus D. This is nothing but your CD. What is C minus D? Your C minus D is what? So your denominator is minus 9. Correct. So your denominator is okay, it is your C minus D is nothing but minus 9. What is your AD minus BC? AD minus BC is, this is your A times B, कितना होगा ये 20 times 11, ठीक है, मैं याद रखता हूँ 20 times 11 minus 29 times 11. So this is same as what, this is same as 20 times 11 minus 29 times 11. So how many times 11? Minus 9 times, correct. So what I found, this x is nothing but same as minus 9 times 11 divided by minus 9. So answer is same as 11. So what we are observing, अगर suppose मैंने 11 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया इस रेशियो के, तो मुझे दूसरा वाला रेशियो मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा ठीक, ठीक है, ओके। See this question, try to solve this, ठीक है। अब थोड़ा जनरल बातें करें, इसको कोशिश कर रहे हैं। Salary has been given in some ratio, expenses given in some ratio, saving has been given. Everyone knows the relation between salary, expense and saving, right? Based on that you can solve. ट्राई करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बट वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड, रेशियो के अंदर सेविंग के बारे में बात करना है। If
दे आर टेलिंग द सैलरी इज 5:4, क्या सोचते हो? 5x 4x, expenses 4:3, क्या सोचते हो? It should be, it can be other multiple as well. उसी x को मत यूज करना. So it would be 4y and 3y is their expense. The difference between salary and expense is nothing but your saving. So they have given 5x minus 4y is 800. 4x minus 3y is again 800. You are supposed to find out the value of x and y. You can find out their income. Don't trust but है ना, बाकी लोग ट्राई करो. 32 एंड नहीं लग नहीं रहा, गलत लगा. 32 एंड 4 नहीं 24 नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. लेट्स सी सर, रुक जाना. ओके सो ए बी, यहाँ पर मैं उनकी सैलरी लिखूंगा, यहाँ पे उनका एक्सपेंस लिखूंगा और यहाँ पे उनकी सेविंग लिखूंगा. सो सैलरी इज नथिंग बट 5x, तो देन दिस इज 4x. इसका एक्सपेंस है 4y, तो इसका एक्सपेंस है 3y. द सेविंग इज नथिंग बट द डिफरेंस, दैट इज 5x minus 4y given as 800. दिस इज नथिंग बट 4x minus 3y given as 800. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? साइमल्टेनियसली, है ना. करके देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है. करेक्ट. एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन y as such because पूछा सिर्फ इनकम है ना. इनकम क्या है? सो इट इज 5x and 4x. करेक्ट. सो वी कैन गेट फ्रॉम दिस. इज इट फाइन एवरीबॉडी? सेविंग, एक्सपेंस एंड सैलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे रेशियो में दिया. जो टेबल में लिखा वो समझ रहे हैं किस तरीके से लिखा? उसके आगे नहीं हो रहा है. ओके, लेट्स डू इट टुगेदर. ओके, हाउ यू सॉल्व एनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस? क्या सोचते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त? सबसे पहली चीज, किसको आपको रिमूव करना है? आई हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. अगर एक चला गया तो मेरा काम हो जाएगा. सपोज इफ आई वांट टू रिमूव y, सो मैं क्या करूंगा? मैं y के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊंगा, है ना. यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे है 4, यहाँ पर है 3. दोनों को सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाले को 4 से. सो पहला इक्वेशन क्या बन गया? वो बन गया 15x minus 12y is equal to 2400. Here it is 16x minus 12y again. This is same as what? 3200. So now y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, लेकिन जब कभी भी साइन सेम होता है हम लोग क्या करते हैं? We subtract, है ना. So if I subtract this, सबका साइन चेंज हो जाएगा, है ना. ये कैंसिल, ये क्या बना? 15x minus 16x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. So minus x is same as minus 800. So the value of x is 800. ठीक है. Is it fine? बेसिक है ये, हर जगह पे यूज होता है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन सही है, आगे बढ़ सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन रीड करने पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद वो चीजें इजी हो जाती है. कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर होता है? बंदा बोलता है कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर केजी एट सम पर्टिकुलर प्राइस मेरे पास राइस था, दूसरा अलग क्वांटिटी अलग क्वालिटी का राइस है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, जो नई क्वालिटी बनी है उसका रेट क्या होना चाहिए, है ना. सपोज इफ आई हैव राइस ऑफ 10 per kg, 12 per kg, आई एम मिक्सिंग इट इन सम रेशियो, जो नया मिक्सचर बना उसका प्राइस क्या होगा, है ना. सो इट इज मिक्सचर टाइप क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल होता है. सबसे पहले चीज, जो दो चीज दी है उसमें से एक थोड़ा हायर क्वालिटी होगा जिसका प्राइस ज्यादा होगा, एक थोड़ा चीपर क्वालिटी होगा, राइट. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीप क्वालिटी का चीज रहेगा ना उसको आप अपने लेफ्ट साइड पे लिख दो, जो कॉस्टली होगा उसको दूसरी साइड लिखो. नाउ इसका जो भी प्राइस है, सपोज उसका प्राइस है C1, दूसरे वाले का प्राइस है C2, कौन इसमें से बड़ा है? C2 बड़ा है, पहले याद रखेंगे. अगर सपोज मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो जो प्राइस बनेगा नए मिक्सचर का, सपोज दैट इज नथिंग बट द मीन कॉस्ट प्राइस, आई राइट इट एज MC. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इज, अब मैंने उनको मिक्स किया है,
इट माइट बी पॉसिबल कि इक्वल अमाउंट में मिक्स करो, देन द रेशियो इज 1:1, बट वी यूजुअली डोंट डू दैट। अलग अलग रेशियो में हम लोग करेंगे, यानी कि 2 kg 3 kg, यानी कि रेशियो इज 2:3। द क्वांटिटी इन विच दे आर मिक्स्ड, यानी कि जो चीपर है और कॉस्टली है, जो क्वांटिटी के अंदर उनको मिक्स किया गया था, उनका रेशियो यानी कि Q1:Q2 इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस, यानी कि C2 minus MC, and difference of this two, that is nothing but MC minus C1। यहां पर जो आपको दो नंबर मिले उनका रेशियो इज सेम एज द क्वांटिटी का रेशियो। एक बार उसको वापस से समझने की कोशिश कर, ठीक है। ओके, सो मेरे पास क्या है, आई हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट आई एम मिक्सिंग। सबसे पहली चीज, जो चीप है उसको आप लेफ्ट साइड में लिखो, जो कॉस्टली है उसको राइट साइड में लिखो। उनको मिक्स करते वक्त हम लोग इक्वल अमाउंट में नहीं, वी आर टेकिंग इन द क्वांटिटी Q1:Q2, है ना। उनकी जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है Q1:Q2। ये रेशियो हमें क्या मदद करता है, ये रेशियो हमें मीन कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मदद करेगा। कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंस बिटवीन मीन प्राइस एंड द कॉस्टली प्राइस इज योर न्यूमरेटर, द डिफरेंस बिटवीन मीन प्राइस एंड द चीप प्राइस इज नथिंग बट योर डिनोमिनेटर। ये रेशियो इज सेम एज योर Q1/Q2। एक सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज इफ आई हैव अ राइस ऑफ प्राइस 10 रुपीज पर केजी, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा लेकिन हम लोग बेच रहे हैं वो, हियर इट इज समथिंग इज एट 18 रुपीज पर केजी। आई एम मिक्सिंग देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये 2:1 क्या है, मेरे क्वांटिटी का रेशियो है। अब मैंने जो मिक्सचर बनाया वो एक अलग टाइप का मिक्सचर है जिसका मुझे प्राइस फाइंड आउट करना है। तो उसका प्राइस कैसे होगा, सपोज उसका प्राइस है x, है ना। ये x क्या सेटिस्फाई करेगा, इनका जो रेशियो है इट विल बी सेम एज 2:1, बट रेशियो किसका। सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखना चाहिए मुझे, 18 - x। सबसे पहली चीज, जो ये मीन कॉस्ट प्राइस रहता है वो इन दोनों के तो बीच में रहेगा, यानी कि 10 और 18 के बीच में रहेगा। इसीलिए इफ यू ऑब्जर्व, मैं यहां पे C2 - MC क्यों लिखता हूं, बिकॉज़ C2 पक्का बड़ा रहेगा MC से, मीन प्राइस से। सिमिलरली यहां पे MC - C क्यों लिखता हूं, बिकॉज़ वो जो भी होगा इससे तो बड़ा रहेगा, इसीलिए वी राइट इन दैट सेंस। इज इट फाइन। यहां पे क्या लिखना चाहिए मुझे, x minus 10. So what we know is this ratio 18 minus x divided by x minus 10 is same as what, 2:1। कैसे निकालेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाक से x का वैल्यू दे दो ना, x इज सेम एज, बहुत कुछ करना है, 18 minus x, 2x minus 20, फिर x को यहां से वहां लेके गए तो वो 3x हो गया, 10 का 20 होके यहाँ पे आ गया, प्लस में हो गया, so 28 is equal to 3x, तो x is same as 28/3। what is the meaning of 28/3, 28 नहीं 38 होगा, 38/3, 38/3 यानी कि 12/2/3, that is nothing but 12.666 is nothing but the mean। अगर मिक्स किया इन द रेशियो 2:1, तो आपका जो प्रोडक्ट बना है ना उसको आप सेल कर सकते हो एट 12.66, देन यू आर सेलिंग व्हाट यू आर ओरिजिनली सेलिंग। बट इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ सकता है पता है, दे विल टेल यू कि मिक्सचर किया, ये मिक्सचर कुछ तो बना, अब आपको अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचोगे, तो सबसे पहले आप मीन कॉस्ट निकालोगे, उस मीन कॉस्ट को उतना इंक्रीज कर दोगे। सो व्हाट happens in competitive exam is this, कि क्या होता है ना, बहुत सारे टॉपिक होता है, जब उनको डिफिकल्टी बढ़ानी होती है ना तो परसेंटेज भी डाल दिया, प्रॉफिट भी डाल दिया, और यहां से मिक्सचर और एलिगेशन भी डाल दिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पूछ लेते। इज इट फाइन, लेकिन ये चीज समझ रहा है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन, ठीक है। वन मोर थिंग वी कैन डू, ये जो आपको बीच का नंबर है ना वो और इजी तरीके से आ सकता था। कैन यू थिंक ऑफ इट इन सम अदर वे, सिर्फ अगर आपको सपोज सिर्फ इसको निकालना x को, और क्या तरीके से सोच सकते हैं, मैंने इसे 2:1, व्हाट डज इट मीन, अगर मैंने उसका 2 kg लिया तो उसका 1 kg लिया, करेक्ट। अगर मैंने इसका 4 लिया तो इसको 2 लिया, अगर इसको मैंने 2r लिया तो उसको मैंने 1r लिया। अगर सपोज मुझे ये मीन प्राइस निकालना है या फिर मीन कॉस्ट निकालना है, उसके नाम के अंदर उसकी सब चीज आ जाती है। मीन यानी कि क्या होता है,
एवरेज. That means I will take the average with the corresponding weight. Weighted average नाम सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने. कोई बात नहीं है. अगर सपोज इफ आई टेल यू आई हैव 2 kg ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ राइस, सो उसका प्राइस कितना हुआ? 2 kg ऑफ द चीपर वन कितना होगा? 20. सो उसका प्राइस हो गया 20, करेक्ट, प्लस 1 kg ऑफ द अदर वन, इट इज नथिंग बट 1 times 18. टोटल केजीज कितने हो गए? सो ये कितने का प्राइस है? 3 kg का प्राइस है ना. पर केजी कैसे मिलेगा मुझे? डिवाइडेड बाय 3, that is nothing but 2 plus 1. Correct? So we can find out this middle number in this way. If you observe, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा. If you added and divided by 3, same आंसर मिल रहा है क्या? Correct? So this x could be obtained directly. This mean price could be obtained directly. बट तो फिर ये मगजमारी क्यों किया? ये मगजमारी किया हम लोग ने. अगर सपोज ये सारा डिटेल दिया है तो ये रेशियो निकाल सकते हो आप. यानी कि आपको बोला कि एक मिक्सचर था, दूसरा मिक्सचर था, मिक्स करने के बाद प्राइस ये हो गया, तो कौन से रेशियो में उनको मिक्स किया होगा? दिस रेशियो कुड बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट. ठीक है, पक्का? ओके, फाइन. सो जो भी मैंने अभी बड़बड़ किया है वो चीजें मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड भी की है. बट एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग मेरे लिए. लेट्स थिंक अबाउट दिस. जैसे कि मैंने आपको कहा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ऐसे सिचुएशन में काम आता है. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको Q1:Q2 फाइंड आउट करना है. ट्राई करेंगे. चलो Q1 Q2 नहीं पता है, करेक्ट. सो लेकिन आप यहाँ पे एक जगह पे 9 लिखोगे, एक जगह पे 15 लिखोगे, दोनों का मीन प्राइस बन रहा है 10.2, फिर वो डिफरेंस निकालोगे, वो जो डिफरेंस मिलता है उसका रेशियो इज नथिंग बट योर Q1:Q2. ठीक है, लिखने की कोशिश करेंगे. रेशियो ऐसा नहीं दिखता है मेरे हिसाब से. यू कैन सिंप्लीफाई इट, राइट? कहाँ गया? Once it sends me उसको जाना. 4/1 एवरीबडी अग्रीज. प्लीज वेरीफाई करते हैं मेरे साथ. सो मेरे पास जो चीप है वो 9 रुपीज पर है, ये 15 पर है. मिक्सचर जो है उसका प्राइस हो गया है 10.2. डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का है सर? इज इट 8.4 कि 6.9? क्या होगा सर? ध्यान नहीं है सर आपका. 4.8. एवरीबडी अग्रीज? यस. लास्ट इसका डिफरेंस कितना है? 1.2. तो मुझे क्या पता है कि भाई ये जो दो नंबर मिले वो मुझे क्या देता है? वो मुझे देता है Q1:Q2. I can divide them by 12 4s and 1s. So the answer is they must have mixed in the ratio 4:1. Then only mixture will cost at 10.2. ठीक है, चल सकते हैं आगे. Try this. देखो कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर रेशियो दे दिया है, तो दो तरीके. आप आइदर वो चार्ट बना के चलो, या फिर दूसरा तरीका क्या आता है? वेटेड एवरेज वाला. यानी कि उसको 3 kg ले लिया, इसको 2 kg ले लिया, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट, है ना. वो हिसाब से भी सोच सकते हो. आइदर ऑफ वे यू कैन टेल इफ यू वांट टू फाइंड आउट मेन कॉस्ट. क्या होता है ना, व्हेन आई जस्ट गो सेंसर उसके साथ निकल जाता है, देन इट इज डिफिकल्ट. आप सही. आंसर इज नथिंग बट 12 plus 18 divided by 5. करेक्ट है ना. किस तरीके से करोगे? जब कभी भी रेशियो दिया है तो क्या करना है? 3:4 plus 2:9 divided by 3+2. हम लोग ने निकाला क्या? हम लोग ने सिर्फ उसका वेटेड एवरेज निकाल दिया. मैंने ये अज्यूम कर लिया कि पहला टाइप ऑफ ऑयल मैंने 3 लीटर खरीदा था, तो ये हो गया उसका प्राइस.
दूसरा मैंने 2 लीटर खरीदा तो ये उसका प्राइस हो गया, टोटल मैंने कितना खरीदा तो 3 + 2, करेक्ट. सो दिस गिव्स मी द आंसर एज 5. सही है क्या? 5 है ना. न्यूमरेटर क्या है 6 होता है ना यार, 30 है ना, 30/5 6, 30/5 इज नथिंग बट 6. आंसर इज 6 rupees per kg liter. 12 + 18 divided by 5, आंसर इज नथिंग बट 6. ठीक है, इज इट फाइन? ओके सर, आप आंसर करोगे इसको? यस यस यस, यू ओनली, लास्ट बेंच, आपका ही ध्यान नहीं है और सबका था. क्या कुछ इश्यू है? इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, others can try on their own, है ना? yes. वो बाय मिस्टेक होता है, जब मैं सेंसर वहां पे रखता हूँ ना, वो चला जाता है, वही नहीं गया ना, वापस से चला गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. ठीक है. Two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number, then you have to find the ratio of those two numbers, initial first two numbers. क्या सोचते हो सर क्वेश्चन के बारे में? लास्ट लेक्चर में थे सर आप? क्यों सर, क्यों नहीं थे? अच्छा, आप भी एग्जाम वाले हो तो आज क्यों बैठे हो? एग्जाम है ना कल परसों है, कोई बात नहीं, चलेंगे. कैसे स्टार्ट करूं प्रॉब्लम को? लेट थर्ड नंबर बी x, फर्स्ट नंबर क्या है 20% मोर. 20% मोर करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1.2, 20 is 2, 1.2. अगर 20% इंक्रीज करना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2. 1/5 इज इक्विवेलेंट टू 1/5, बट इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, मैं 1.2 लिख दूंगा. ये 1.2 कैसे मिला? 1 + 20/100, दैट इज नथिंग बट 1.2. राइट, सो द फर्स्ट नंबर इज 1.2, सेकंड नंबर इज व्हाट, इट इज अदर नंबर इज 50% मोर. तो वो थर्ड नंबर के क्या मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1.5, करेक्ट, नॉट 50%, इट इज 50% मोर, है ना? चलेगा यहां तक? रेशियो निकालना था तो क्या करूं, कैंसिल कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. एक्स क्या, एक्स थर्ड नंबर है. फर्स्ट नंबर 20% मोर था इसलिए 1.2x, सेकेंड नंबर 50% मोर था इसलिए 1.5x. रेशियो करते वक्त मैं एक्स एक्स को कैंसिल कर सकता हूं, डेसिमल डेसिमल हटा दिया, आंसर क्या आया, इट इज 3:5, 4:5, है ना? 4 3s are 5 3s are, answer is 4:2. Is it fine? Okay, next question. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैसे सोचते हो क्वेश्चन के बारे में? यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं दिया है पहली बात, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया कि C gets 1000 more than D. सपोज टोटल अमाउंट कुछ भी होता है XYZ, बट उस टोटल अमाउंट को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा 5 + 4 + 2 + 3, मैं इतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा. वो जो पार्ट्स है उसमें से 5 पार्ट्स ए को, 2 दूसरे को, 4 तीसरे को और 3 तीसरे को. बट मुझे क्या दिया उन्होंने इंफॉर्मेशन कि C gets 1000 मोर देन D. उस हिसाब से सोचो कि C को कितना पार्ट D से ज्यादा मिलता है. C को 4 पार्ट मिल रहा है, D को 3 पार्ट मिल रहा है. That means C is getting 1 part more than D, and then 1 part is equal to what 1000. That means मैंने जो इक्वल पार्ट बनाए थे
उसमें से एक पार्ट है 1000, ठीक है। देखो ये तरीके से टोटल क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, फिर टोटल अमाउंट मिल सकता है, बिकॉज मुझे पता था टोटल अमाउंट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, टोटल इज दैट इज नथिंग बट 14, 14 पार्ट में से एक पार्ट है 1000, तो टोटल कितना हो रहा है 14,000 इज नथिंग बट द टोटल नंबर। उसकी जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज बी शेयर, बी को कितना पार्ट मिलता है 2, एक पार्ट 1000 है तो दो पार्ट, करेक्ट, विदाउट राइटिंग एनीथिंग वी कैन गेट द आंसर, इज इट फाइन। तो जब कभी भी रेशियो दिखता है ना तो उसको पार्ट के बारे में सोचोगे, कितने पार्ट में डिवाइड करोगे ना, ऑल दैट थिंग्स बिकम सिंपल। ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ, ये थोड़ा सिंपल। हाँ सर, ओके सर, ओके। सो कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर चल रहे हैं ना, यही क्वेश्चन था। ओके लेट्स सी, एक जगह पे नहीं रुकना चाहता। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी फाउंड इज, सपोज इफ माय ओरिजिनल नंबर इज समथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था XYZ, but this XYZ will be divided into how many parts, टोटल पार्ट्स कितने हो गए इसके, 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, whatever is that amount I will divide it into this many equal parts, है ना। So total how many parts, it is divided into 14 equal parts. Now out of this 14 equal part, C get how many parts, 4 parts मिलता है ना उसको रेशियो के हिसाब से, है ना, बिकॉज 4:3 है, करेक्ट, एंड D gets 3 parts, यानी कि C को D से कितना पार्ट ज्यादा मिल रहा है, that means it is getting one more part, and this one more part is same as what, so that means one part is same as 1000. B को टोटल कितना पार्ट मिलता है, दो पार्ट, one part is 1000, then two parts is same as what, is it fine, is it fine, चल सकते हैं आगे, yes. Try this question, परसेंटेज रेशियो सब साथ में इसके अंदर, ट्राई करेंगे मैडम क्वेश्चन को। Initial ratio is 5:7:8. It is increased by 40%, 50% and 75%. You need to think about the final ratio. इतना होने के बाद क्या हुआ रहेगा, सर इतना भी हवा में नहीं हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द नंबर्स बाय परसेंटेज, राइट, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कि आपको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 नंबर, ट्राई टू राइट समथिंग, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर, 2 कॉलम में, आइदर ऑफ देम इज ट्रू। ओके इनिशियली मैथ्स के लिए अगर 5x सीट है तो फिजिक्स के लिए कितनी होगी, 7x, and correspondingly that is 8x. Now what they are telling me is the first thing is increase by 40%. That means यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, फाइनल में क्या आएगा, 1.4 times that 5x. Is it fine? यहाँ पे क्या आएगा, 1.5 times 7x, and similarly over here 1.75 times 8x. 40% increase, multiplicating factor.
आगे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहां पर जो चीजें मिली है उनका रेशियो निकालना है ना। पहली बात, रेशियो निकालेगा तो एक्स 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 तो कट जाएगा, है ना। तो आपके पास है 1.4 टाइम्स 5 इज टू 1.5 टाइम्स 7 इज टू 1.75 टाइम्स 8। हमें क्या पता है रेशियो कब अनचेंज रहता है, इफ वी मल्टीप्लाई समथिंग और वी डिवाइड समथिंग। ठीक है, अगर सपोज मैंने तीनों चीजों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 14 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 इंटू 7, और ये हो जाएगा 175। पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट। आई डिवाइडेड बाई 10 चल जाएगा, अच्छा लग रहा है। ओके, अब क्या करूं, I just want to simplify. This is nothing but my answer, but in the simplified version is given in the option. क्या लगता है? सॉरी भाई, अच्छा इसको कट कर सकते हम लोग क्या? अच्छा इसको मैं 2 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 5 से ये कट होगा, इट इज नथिंग बट 30 5 35। एवरीबॉडी एग्रीज? सो मेरे पास नंबर है 14 इंटू 5, 15 इंटू 7 एंड 35 इंटू 4। क्या क्या भाई कट होगा, है ना। सबसे पहले 5 5 सब जगह से कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पक्का, ओके। अब 7 कट होगा, 7 7 2, so it is 2 is to 3 is to 4, option A is correct. चलेगा? हाँ वो रहा साथ, अब चला जाएगा, हो जाए तो बताओ जल्दी, थोड़ा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट दिस। चलो बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई देयर इज 60 लीटर ऑफ मिक्सचर having the milk and water in the ratio 2:1. now the ratio become 1:2, यानी कि मिल्क से ज्यादा पानी है। then we have to identify कि कितना quantity of water add किया होगा उन्होंने। answer is, someone said, how? answer is correct, someone said, किसी ने तो बोला, हाँ answer is correct, I think so. Let's try to see, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला, if I have 60 liter of a mixture which has milk and water in the ratio 2:1, मिल्क कितना होगा टोटल? 3 लीटर होगा। आउट ऑफ 60 milk is 2 part and it is 1 part is water, 40 liters of milk and 20 liter of water। गिवन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 20 is 1 part, 2 part is ऐसा करके, ठीक है। ओके सो okay, so initially the milk was 40 लीटर, एवरीबडी अग्रीज, कैसे आया ये, एंड वाटर वाज 20 लीटर। उन्होंने किया क्या, अब ऐड कर दिया वाटर। सो मिल्क को तो उतना ही है ना, मिल्क इज अनचेंज, यानी कि 40 लीटर ही है, लेकिन 20 प्लस उन्होंने कुछ तो अमाउंट किया सच दैट दिस रेशियो बिकम्स व्हाट 1:2। अगर रेशियो 1:2 है तो ये 1 है तो ये 2 है, मतलब इसका डबल नीचे होना चाहिए। 40 का डबल कितना होता है 80, 80 में से 20 है तो x का वैल्यू होना चाहिए, एवरीबॉडी अग्रीज? ठीक है, तो विदाउट डूइंग मच द वैल्यू ऑफ दिस मस्ट बी 60 बिकॉज द रेशियो वाज गिवन एज 1:2। ठीक है, चल सकते हैं आगे? देख लो, डन, ओके। यस,
Read this. फोन क्या Have you seen something similar before? कुछ तो था ना, रेशियो में कुछ ऐड करने पे बदल जाता है रेशियो, हमें उसको फाइंड आउट करना था, है ना? सो आई थिंक वी हैव सीन दिस. वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस. मेरा जो आंसर है वो क्या होगा? हमें किसका सैलरी चाहिए? हमें सुमित का सैलरी चाहिए, राइट? सुमित इज नथिंग बट द सेकंड पर्सन. तो यानी कि आपको ये b into x c minus d डिवाइड बाय ad minus bc चाहिए. ठीक है, सो आंसर निकालेंगे. सो दिस इज रिक्वायर्ड. आराम से होता है कहाँ गया? बहुत ज्यादा होता है. हाँ आ गया हाँ आ गया. ओके, सो हियर द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज दिस. एवरीबॉडी एग्री, है ना? सुमित का यानी कि सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है. सो दैट इज नथिंग बट बी का वैल्यू क्या है? 3, है ना? इट इज a to b क्या है? 2:3, करेक्ट. सो b इज नथिंग बट 3 टाइम्स x क्या है? जितना आप ऐड करते हो, ऐड कितना कर रहे हो? 4000. तो इट इज 3 times 4000 into c minus d यानी कि जो दूसरा रेशियो उसका डिफरेंस, दैट इज हाउ मच? डिफरेंस इज 17 डिवाइडेड बाय ad minus bc, that is nothing but ad यानी कि 2/3 and it is 40/57. this is a into d, this is b into c. 57 into 2 minus 40 into 3. So the denominator is what? 57 2za, it is 114 minus 120. So that is came out to be minus 114 minus 120 minus 6. अगर वो minus 6 है ना तो ये 17 भी minus 17 होगा, हाँ कि ना? है ना? c minus d है ना, तो c minus d यानी कि 40 minus 57, है ना? आंसर माइनस में होना ही नहीं चाहिए था, अगर नीचे मिला तो ऊपर ही माइनस मिलेगा ही. सो इट इज minus 17 into 3 into 4000. आंसर क्या आएगा भाई? ये गया 1za 2za 2za 4za 2000 into this is 17 2za 30 34. ऑप्शन है ऑप्शन है, देखो है ना? बाकी सब सही लिखा है ना? बाकी सब सही है तो ऑप्शन में गलती होगा, ठीक है? अब एग्जाम में ऐसा मत करना, है ना? एग्जाम में ऐसा मत करना, डोंट डू दैट. लेकिन सही है, समझा क्या किस तरीके से? क्या देखो, इस चीज को आप नॉर्मल वे से भी सॉल्व करते हो, बट अगर आपको ये चीज बार बार दिख रहा है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. सोचना कम है, टाइम बचाना है, ठीक है? अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जाओगे ना तो 2 मिनट लग जाएगा. वो इक्वेशन बनाओ, यहां से वहां लेके जाओ. वो हियर वी कैन डायरेक्टली राइट दिस. चल सकते हैं आगे थोड़ा? चलो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा तो मुझे बुरा लगेगा. प्लीज आंसर दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग क्या है इसका? दिस 4 नंबर आर इन proportion. That means 0.75 by x is same as 5 by 8. x का वैल्यू फाइंड आउट करने, कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने. सिर्फ आपको ये नोटेशन का मतलब भी पता चल गया तो इसका आंसर मिल जाता है. कल 1.25 के 1.2 से, अरे वेरी गुड. ऑप्शन नहीं है, काट के डाल दो. 1.2, ठीक है. देखो आपका कहीं रहा है, मेजोरिटी के साथ जाता है. 1.2, ठीक है ना? 1.2 बराबर, सबका आया तो मेरा भी. ठीक, चल सकते हैं लेकिन आगे. इज इट फाइन? यहाँ पे सिर्फ ये था कि आपको प्रोपोर्शन का नोटेशन पता चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? चले 1.2. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे?
चलेंगे थोड़ा थोड़ा, चलिए चलिए। सबसे पहले द नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बट तीनों का जो रेशियो अलग तरीके से दिया है। पहले दूसरे का रेशियो है, दूसरे तीसरे का रेशियो। सबसे पहला काम क्या है, तीनों रेशियो को कंबाइन करना। सो 2:3 एंड 5:8, मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड। Okay, so suppose the number are A, B, C. The ratio of first two is 2:3. The ratio of this two is nothing but 5:8. दोनों को क्या बनाना चाहिए मुझे? 15. LCM is 15. अगर इसको 15 लिखता तो इसको क्या लिखूं? अगर इसको 15 लिखा तो इसको 24. That means this number are in the ratio 10:15:24. यानी कि given number has been divided into how many equal parts? Not this many, 3 parts है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट, उस नंबर ऑफ पार्ट में से पहला पार्ट होगा 10 का ग्रुप, सेकंड 15 एंड 24, है ना? सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज सम ऑफ दिस, ठीक है? इट इज 49. दैट मींस टोटल 49 पार्ट्स। तो एक पार्ट कितना है? 98 को मैंने 49 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट इज 2। इस ऐसे कितने पार्ट बी को मिल रहे हैं? 15. सो आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट फाइन? चल सकते आगे? ओके। नाउ देखो सिमिलर क्वेश्चन, बट द रेशियो गिवन इज नॉट लुकिंग सो गुड, है ना? इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज नॉर्मल इंटीजर रहता है ना तो चीजें इजी होती है। यहां पे उन्होंने रेशियो दिया है जो खुद भी एक रेशियो के टर्म में 1:2, 2:3। हाँ 1 2 3 4 वो है, बट व्हाट आई वांट, आई डोंट लाइक दिस, बिकॉज इस हिसाब से उसको करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो गए? We add the numbers, right? Which is not possible in this case. So what we do first is we just convert it to integers. Can I do? What we know, ये ratio जो है वो unchanged कब रहता है? If I multiply it by something, ऐसा मुझे कैसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए सच दैट कि सबका डिनोमिनेटर चला जाए? ऐसा कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 12 क्यों भाई? बिकॉज इट इज एलसीएम, है ना? सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, है ना? नहीं मैडम, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6, बिकॉज नीचे 2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, राइट? इज टू 8 इज टू 9, यानी कि गिवन जो रेशियो था वो एक्चुअली में सिर्फ ये है 6:8:9, यानी कि 782 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? वापस से 3 मत बोलो सर। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? this plus this, it is 23 equal parts. That means this 782 is divided into 23 equal part. 23 थ्रीजा चलेगा क्या? It is 69 and that came out to be क्या? रिमाइंडर क्या बचेगा? It is 92. That is same as what? 4 right? So that means what I found, this whenever I divide this into 23 equal part, each part is nothing but 34. This is nothing but one part. Now first number get how many parts? So that means answer is nothing but the first number, it is 34 into 6. The answer is okay. देखो क्या करना है ना, आपको सिर्फ 4 into 6 करना है, आंसर इज 4, ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है? चलेगा पक्का? चलो फटाफट से ये करके दो। लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। जब मैं कंटेंट राइटिंग करता था ना, तब रेशियो के अंदर दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। इसको करने पे थोड़े बच्चा टाइम लेता है ना? समटाइम्स व्हाइल क्रिएटिंग क्वेश्चन व्हाट वी सी इज कि डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ कभी कभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन डालते हैं ना कि जो लेंदी हो थोड़ा,
वरना एट दैट टाइम वी वांट स्टूडेंट टू थिंक कि कौन सा क्वेश्चन उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम डजंट मीन यू हैव टू स्कोर 100%, you have to score above everybody else. So for my personal experience of clearing examination, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है, मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पता चला if I solve even 33% of the question, I clear the examination. Most of the examination के अंदर अगर आप कट ऑफ देखोगे ना तो वो 33% के आसपास ही निकल जाता है. So you need to think, आप पहले जो भी एग्जामिनेशन के लिए चाहते हो, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने से पहले उस एग्जामिनेशन को पढ़ना जरूरी होता है कि उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मुझे कितना सॉल्व करना होगा कितने टाइम के अंदर. लुक एट द क्वेश्चन, इज इट द क्वेश्चन व्हिच कैन क्लियर यू द एग्जामिनेशन? नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, कोई इजी क्वेश्चन पे जाओ जहां से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो आप. क्या है यहाँ पे उन्होंने बोला है, द इन द बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25, 10 एंड 5 पैसा इन द रेशियो 1:2:3. The total amount is given as nothing but 30. सबको ऐड करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई 5 पैसा के कितने कॉइन्स थे. क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहे हो सोचना. टोटल कॉइन्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर व्हाट? 1x plus 2x plus 3x. That is nothing but 6x. थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी का वैल्यू अलग अलग है ना. That means over here I have 1x coin of 25 paisa, 2x coin of 10 paisa and 3x coin of 5 paisa. है ना. That means what is the value that I am getting? I am getting the value of 25 times x from this 25 paisa plus 10 times 2x from 10 paisa plus 5 times 3x from 5 paisa coin. सबको ऐड करने के बाद मुझे टोटल वैल्यू मिल रहा है, एंड टोटल वैल्यू इज व्हाट? नॉट एक्चुअली 30 इन दिस केस, इट इज 30 को हमें पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. रुपीस में मुझे उसको पैसा में कन्वर्ट करना है. सो दैट इज सेम एज व्हाट? 3000 1 रुपी सेम एज 100. सो अब क्या करोगे? अब आपके पास एक इक्वेशन एक वेरिएबल है ना. ऐड करो, x का वैल्यू निकाल के दे दो मुझे. 25 plus 20 plus 15, that is same as how much? 25 plus 20 plus this is 60. 60x is same as 3000. 60 यहां से वहां गया है ना. So it is 3000 divided by 60. 0 cancel. This is nothing but 5. तो आंसर ऑफ x is nothing but 15. आपको 5 पैसा के कितने कॉइन थे? इतने, है ना. 5 पैसा के इतने कॉइन है ना, 3x. So that means answer is, is it fine? ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन खत्म होता है. दो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रह जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ तक सही है? चल सकते हैं आगे. दो क्वेश्चन और फिर आप बातें करो. ये सही लग रहा है? ओके, चल सकते हैं आगे. ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचेंगे. बहुत ज्यादा बेसिक है कि अगर आपको 3 नंबर इस तरीके से दिया है, आपको उसका रेशियो फाइंड आउट करना है. सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग एंड यू गेट द आंसर. इफ द रिलेशन इज गिवन लाइक दिस, यू हैव टू फाइंड आउट a is to b is to c. यस, कैसे सोचते हो? क्या करना था? बैक करना, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है. हाँ, आ गया. मुझे a is to b is to c फाइंड आउट करना है. सबसे पहले अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ पहले तो इक्वालिटी. I know my 5a is same as 13b. So what is a by b? It is 13 by 5. So can I say my a is to b is same as 13 is to 5? Similarly, what I can write my b is to c? So that is, it is 13b same as 7c. So b is to c is nothing but 7 by 30. मुझे क्या चाहिए था? मुझे डिनोमिनेटर इसका और इसका न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा. इसको और इसको सेम करना है. क्या कर दूं? यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 7 से, यहां से 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से. सो माई a is to b is to c क्या आ रहा है? 13 7 जा
7 3s are 21, it is 8, it is 91, yes 2 carry था, is to 5, it is 35, is to 65, is nothing but the answer. ठीक है, एक तरीका था कि इस तरीके से करना. दूसरा तरीका क्या सोच सकते पता, what I could have done if I know my 5a is same as 13b is same as 7c, I would have divided it with its LCM, इनका जो कॉमन मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई कर देता है ना. कॉमन मल्टीपल क्या है इसका, 5, 13 एंड 7. सबसे पहले दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स, इसका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही रहेगा. करेक्ट. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डिवाइड दिस बाय 5, 13, 7, 5, 13, 7. बैलेंस करने के लिए हर जगह पे सेम चीज 5, 13, 7. द नेक्स्ट थिंग इज, जो चीज कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाएगा, है ना. 5, 5 कट, 13, 13 cut, 7, 7 cut. So what is left over here? This is same as what? 91. Left over here is nothing but 35, and left over here is nothing but. One more way we can get to the answer. Is it fine? Okay. Full and final for today. Given this, you need to find out this fraction will be equal to what. लेकिन उन्होंने बोला कि a by b c, b plus c is same as b by c plus a, which is same as c by a plus b. We need to find out that this is same as what, which of the following. The question looks बहुत ज़्यादा difficult कि भाई कुछ पता नहीं है abc के बारे में. How we can find out this is equal to which of the following? And बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक मैंने ये बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ ली है ना. रेशियो प्रोपोर्शन 8 में पढ़ जाता है ना, 8 9 में आ ही जाता है ना. तो सेम थिंग वी आर लर्निंग, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि आपको इंट्रोडक्शन प्लस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना था. यहाँ पे हमारा काम था हमें ट्रिक के साथ फास्टली उसको सॉल्व करना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ हियर द क्वेश्चन इज रियली सिंपल. इफ यू नो सिंपल थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. The theorem of equal ratio क्या बोलता है कि जब कभी भी आपके पास equal ratio होते हैं, and if you add the numerator at the same time you add the denominator, the new ratio that you get is equal to the initial ratios. That means like this. If I have a by b same as c by d same as e by f which is same as that ratio k, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में सबको ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में सबको ऐड कर दो. जो नया रेशियो मिलता है इट इज सेम एज द रेशियो दैट यू आर गेटिंग प्रीवियसली. By using this theorem of equal ratio, what I can do is, मैं यहाँ पे ऊपर जो है ना मेरा क्वेश्चन में उसके सारे न्यूमरेटर को ऐड कर देता हूँ. सपोज दिस रेशियो है वो k है. नाउ दिस k इज सेम एज व्हाट, k इज सेम एज a प्लस b प्लस c. डिनोमिनेटर को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब चीज दो बार आ जाएगा ना. सो इट इज 2 times a प्लस b प्लस c. अच्छा नहीं लग रहा है इनको, आंसर इज. Okay. So if you just know that concept, the question is of 2 seconds. If you don't know the concept, question पूरा exam ले लेगा. Is it fine? These are the few basic questions. I will repeat again. हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ basic questions को cover किया है. ठीक है? Still difficulty could be increased, but we have tried to cover all different type of basic questions that could be asked in ratio and proportion. ठीक है? यहाँ तक सब कुछ ready for the test? Okay. I'll just keep the ink. I'll share the 2 minute break ले लो फिर मैं शेयर कर लेता हूँ.